जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबी आंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ट्रॉन्ग और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता करबी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। लंबे समय से 10वीं परीक्षा को लेकर छात्र तथा उनके माता पिता और सारी जनता काफी चिंतित अथवा चर्चित में है कि इस कोविड-19 महामारी के चलते 10वीं अथवा बोर्ड का परीक्षा आयोजित किया जाएगा या नहीं। ये खबर आपको जानना जरूरी है कि किसी भी प्रकार से 10वीं परीक्षा कैंसिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आज उच्च स्तर पर लंबी आलोचना के पश्चात ये फैसला किया गया है। कल राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ अहम बैठक में हालातों की समीक्षा और सभी मसलों पर चर्चा के बाद इस साल होने वाली 10वीं परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद बताया गया 1 जून को परीक्षा आयोजित करने का नया निर्देश जारी किया जाएगा। 1 जून को नया निर्देश जारी किया जाएगा और सितंबर महीने के भीतर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि असम में भी 10वीं का परीक्षा आयोजित किया जाएगा और असम के शिक्षा मंत्री रोनूस पेगू ने भी सारे छात्रों को तैयार रहने को कहते हैं। हालांकि कई सारे राज्य इस परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र परीक्षा आयोजित करने से मना कर रहे थे और दिल्ली भी कहते हैं कि फेजर का इंजेक्शन जब तक नहीं आते हैं तब तक एग्जाम आयोजित नहीं किया जाएगा। पर बड़ी खबर यह है कि 10वीं का परीक्षा आयोजित किया जाएगा। असम आयोजित करेगा परीक्षा और काफी राज्य समर्थन में है, लेकिन परीक्षा किस तरह आयोजित किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा। कुछ कह रहे हैं परीक्षा का ड्यूरेशन कम करने को, कह रहे हैं 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे रखने चाहिए। कोई कह रहे हैं पूरे विषय यानी सब्जेक्ट में नहीं 3 सब्जेक्ट में आयोजित करें। उम्मीद है कि ये सारे नीति निर्देश हमें 1 जून तक मिल जाने चाहिए। अब देखिए असम के शिक्षा मंत्री रोनूस पेगू क्या कहते हैं। স্পষ্ট কৰি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে CBSEৰ পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষা হোৱাটো সুনিশ্চিত আৰু এইটো জুন মাহত হয়তো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই। জুলাই মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি এটা শিডিউল, মই কৈছোঁ এইটো প্ৰস্তাৱ, সিদ্ধান্ত নহয়, সেই প্ৰস্তাৱটো হ'ল অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে, যিটো প্ৰস্তাৱ অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰতে এইটো ভাৰত চৰকাৰে চূড়ান্ত কৰিব। সদায় এটা প্ৰশ্ন আহে যে আমাৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাবিলাক বেলেগ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হয়, আমাৰ CBSEৰ পৰীক্ষাবিলাক বেলেগ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হয়, তেওঁলোকৰ CBSEৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়, আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বেলেগ হয়। পিছত গৈ পেলাই আমি সৰ্বভাৰতীয় শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি যেহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে CBSE পৰীক্ষা আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰীক্ষা আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি ইংগিত পালোঁ, এই দুইটা পৰীক্ষাৰ ধৰণ কৰণ শিডিউলিং এইবিলাকৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য থাকিব আৰু তেওঁলোকে যিটো ফৰ্মুলাত যেনেধৰণে কেইটামান ছাবজেক্ট সংকুচিত কৰি হ'লেও যি ধৰণে পৰীক্ষা পাতিব আমিও সেই ধৰণে পৰীক্ষা পাতিম। এতেকে মাৰ্কিঙৰ ফৰ্মুলাটো, ইভালুৱেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো একে হ'ব। কিন্তু সকলোকে মই পুনৰবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অভিভাৱকসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, CBSEৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব। দুইটাৰ মডেলিটিজৰ ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য থাকিব, গতিকে ভৱিষ্যতে কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু এই পৰীক্ষাৰ তাৰিখবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা JEE বা NEET তাৰ লগত যাতে ক'তো কনফ্লিক্ট নকৰে সেই কথাটোৰ প্ৰতিও চৰকাৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব। এটা খুব সুন্দৰ সামঞ্জস্যতাৰে পৰীক্ষাখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু তাৰ বাবে পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব লাগিব। সকলোকে পুনৰবাৰ মই ঘৰতে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰীক্ষা কেনেধৰণে দিব তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত সকলোৱে হ'লে যাতে আমি সকলো CBSEৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আৰু আমাৰ সেকেন্ডারি আমার এডুকেশন আমার কাউন্সিলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যাতে ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अपनी उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरे देश में इस वक्त करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं
जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स, इनके टीचर्स और खुद ये बच्चे सबके सब बहुत उम्मीद भरी निगाहों से सरकारों की ओर देख रहे हैं और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं कि केंद्र सरकार परीक्षाओं के बारे में कोई निर्णय ले, ताकि 12वीं की जो ये क्लास है ये इतनी लंबी होती चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये 12वीं की क्लास से आगे उनको बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसे समय में ये सब बात हो रही है, आज जो चर्चा हुई, जब हमारे पास रोजाना 2.5 लाख केस आ रहे हैं पूरे देश में, लगभग इस समय भी देश के बहुत सारे गांवों से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की बॉडीज मिल रही हैं, वो हम सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हमारे सामने बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथो।